السلام علیکم دوستو، بریکنگ نیوز ود معظم فخر میں خوش آمدید۔ اگلی منگل کو پھر آئیں گے۔ منگل کو زیادہ واٹر کینن لے کے آنا۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے راولپنڈی انتظامیہ کو اگلی منگل کے لیے نیا الٹیمیٹم دے دیا، لیکن کیا اگلی منگل تک عمران خان اڈیالہ جیل میں موجود ہوں گے؟ میرے نزدیک یہی سب سے امپورٹنٹ سوال بھی ہے اور یہی سب سے زیادہ اہمیت کا حامل معاملہ ہے۔ کیوں؟ اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ عمران خان سے ملاقاتوں کا ایشو ایک طویل عرصے سے، خاص طور پر اکتوبر سے لے کر اب دسمبر آ گیا ہے، ملاقاتوں کا ایشو بدستور موجود ہے، اور ملاقاتیں نہ ہونے کا بنیادی تعلق عمران خان کی ٹویٹ سے ہے جو کہ وہ سوشل میڈیا پر جاری کرتے ہیں، اور ہر ملاقات کے بعد ایک نیا ٹویٹ سامنے آ جاتا ہے، اور وہ ٹویٹ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان وجہ تنازع بن کے سامنے آتا ہے۔ حتیٰ کہ خود پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ چیئرمین بیرسٹر گوہر خان نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اگر عمران خان کا یہ ٹویٹ منظر عام پر نہ آتا تو پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ڈائیلاگ شروع ہونے جا رہا تھا۔ ڈائیلاگ شروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ڈیڈ لاک کے خاتمے کی امید بن گئی تھی، لیکن عمران خان کی طرف سے ٹویٹ کے سامنے آنے کے بعد ایک مرتبہ پھر نہ صرف ڈیڈ لاک اور زیادہ سنگین ہو گیا ہے، بلکہ اب تو سرکاری طور پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی اس بات کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ملاقاتوں کے اوپر پکا کاٹا لگ گیا ہے۔ اب انہی ملاقاتوں کے ایشو کو لے کر عمران خان کی جو بہنیں ہیں علیمہ خان، عظمیٰ خان اور نورین خان، ان کی طرف سے کل رات کو جو ہے وہ عمران خان سے ملاقات کی کوشش میں ناکامی کے بعد دھرنا دے دیا گیا۔ عمران خان کے اہل خانہ کل دوپہر 2 بجے اڈیالہ جیل کے قریب پہنچے، گورکھپور ناکے پر ان کو روک دیا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے پیدل ہی اڈیالہ جیل کی طرف سفر کا آغاز کیا۔ بعد ازاں 4 بجے ان کو یہ بتایا گیا کہ ملاقات کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب آپ کی عمران خان کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکتی، جس کے بعد عمران خان کی بہنیں اور 30 کے قریب کارکنان جو تھے انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دے دیا، اور یہ دھرنا رات گئے تک جاری رہا۔ اس دوران پولیس کی طرف سے عمران خان کی جو بہنیں ہیں ان کے ساتھ مذاکرات بھی کیے گئے، مذاکرات میں ناکامی ہوئی، جس کے بعد پنجاب پولیس کی طرف سے وہ تمام سرکاری گاڑیاں جو کہ خیبر پختونخوا سے پنجاب آئی تھیں ان کو نہ صرف تحویل میں لے لیا گیا، بلکہ تحویل میں لینے کے بعد ان گاڑیوں کو روات تھانے میں منتقل کر دیا گیا۔ بعد ازاں ایک اور دور ہوا مذاکرات کا عمران خان کی بہنوں کے ساتھ، اور اس مذاکرات کے دور میں علیمہ خان نے دھرنا ختم کرنے کے لیے خیبر پختونخوا کی سرکاری گاڑیاں واپس کرنے کا مطالبہ کیا، جس کو انتظامیہ نے تسلیم کر لیا، اور 6 گاڑیاں روات سے واپس اڈیالہ روڈ پر لائی گئیں، اور لا کر وہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی تھے شاہد خٹک، ان کے حوالے کر دی گئیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی دھرنا ختم نہیں ہوا، جس کے بعد پولیس نے تقریباً رات 2 بجے کے قریب اپنا جو ایکشن ہے وہ شروع کیا، اور اس ایکشن کے تحت شدید سرد موسم میں ٹھنڈا یخ پانی جو ہے وہ 30 کے قریب جو کارکنان وہاں پر موجود تھے عمران خان کی بہنوں کے ہمراہ، ان کے اوپر واٹر کینن سے پانی کا جو چھڑکاؤ ہے وہ کیا گیا، اور چونکہ واٹر کینن سے پانی ایک تیز رفتار کے ساتھ آتا ہے تو بہت سارے لوگ وہاں پر گر گئے۔ علیمہ خان کو بھی واٹر کینن کا نشانہ بنایا گیا، شاہد خٹک بھی واٹر کینن کا نشانہ بنے، اور واٹر کینن کا نشانہ بنتے ہوئے وہ ایک قریبی جو نالی سی تھی وہاں پر گر گئے، اور گرنے کے نتیجے میں ان کے پاؤں کی ہڈی فریکچر ہوئی، اور بعد ازاں انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنی پوری ٹانگ کا جو پلاسٹر تھا اس کے ساتھ انہوں نے اپنی تصویر کو بھی جاری کیا۔ بعد ازاں جو عمران خان کی بہن علیمہ خان، ان کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا گیا، جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا ہے، کہ ہم اگلی منگل کو پھر آئیں گے، اور اگلی منگل کے لیے ہم یہاں سے جانے کے لیے نہیں آئیں گے، ہم یہاں پر ہی قیام کریں گے، لہٰذا اگلی مرتبہ زیادہ تعداد میں واٹر کیننز کو لے کے آئیے گا۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس دھرنے سے قبل پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے اپنے کارکنان کو علیمہ خان، عظمیٰ خان اور نورین خان کے ہمراہ
अडयाला जेल के बाहर धरने में शिरकत से रोक दिया था। और यही वजह है कि शाहिद खट्टक या मीना खान अफरीदी के अलावा कोई बड़ी शख्सियत यहाँ पर अलीमा खान और दीगर के साथ मौजूद नहीं थी, और ना ही कारकुनों को यहाँ पर आने की इजाज़त खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी थी। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा ने इस बात का इजहार किया कि इमरान खान से मुलाकातों के बाद जो भी मौक़िफ़ अलीमा खान, उस्मा खान या नौरीन खान के ज़रिए सामने आता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये उनकी ज़ाती राय है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी ज़ाती राय की कदर तो करती है, लेकिन उस राय को पार्टी का मौक़िफ़ तस्लीम नहीं किया जा सकता। यानी पार्टी ने अलीमा खान, उस्मा खान और नौरीन खान से फासला इख्तियार करना शुरू कर दिया है। अब आ जाता है मामला उस सवाल का जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में किया था कि क्या इमरान खान अगली मंगल तक अडयाला जेल में मौजूद होंगे। और इस सवाल की 3 बुनियादी वजूहात हैं, और ये मैं 3 बुनियादी वजूहात आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले डॉन अखबार में शाया होने वाली इस खबर का अक्स देखें जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस अक्स के तहत पंजाब असम्बली के अंदर एक करारदाद की मंजूरी दी गई है, और इस करारदाद के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दुश्मन मुल्क की आला कार पार्टी और इमरान खान समेत पार्टी रहनुमाओं पर पाबंदी आयद करने के लिए करारदाद को पेश किया गया, और पंजाब असम्बली ने इस करारदाद को मंजूर कर लिया। ये करारदाद मुस्लिम लीग नून के रुकने सूबाई असम्बली ताहिर परवेज़ की तरफ से पेश की गई थी। करारदाद में कहा गया कि मुल्क के खिलाफ बयानबाजी और इंतशार फैलाने वालों पर पाबंदी आयद की जाए। करारदाद में ये बात भी कही गई कि मुल्क के खिलाफ बात करने वालों को कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। करारदाद में मुल्की इस्तेहकाम के लिए काम करने वाले इदारों को खराज तहसीन भी पेश किया गया। इस करारदाद को जो है वो स्पीकर साहब ने वोटिंग के लिए मंजूर किया, और स्पीकर साहब की तरफ से इस करारदाद पर वोटिंग कराई गई, और इस करारदाद को पंजाब असम्बली की तरफ से मंजूर कर लिया गया। यह करारदाद DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद किए जाने की बात अगरचे DGISPR की तरफ से नहीं की गई, लेकिन ये तासुर सामने आया था कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल फ्रेम के अंदर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी तरीके से फिट नहीं बैठ रही। और उसके बाद अब पाकिस्तान के जो वज़ीर ममलिकत हैं बराए अमूर दाखिला जनाब तलाल चौधरी, उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने का इशारा भी दिया था। इस दौरान इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी एक अहम ऐलान सामने आया था, और उन्होंने बैरिस्टर गौहर खान को पार्टी चेयरमैन तस्लीम करने से इनकार करते हुए कहा था कि जब पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन वो ही अभी तक जो है वो दुरुस्त करार नहीं दिया गया, तो ऐसी सूरत हाल में उस इलेक्शन के नतीजे में मुंतखब होने वाले चेयरमैन के इंतखाब को किस तरह दुरुस्त तस्लीम किया जा सकता है। और बैरिस्टर गौहर खान को चेयरमैन तस्लीम करने से उन्होंने माजरत कर ली, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट पेशरफ्त थी। इसी दौरान इमरान खान की अडयाला जेल से मुंतकली के हवाले से कुछ खबरें सामने आ रही हैं। 3 जेलों की बात की जा रही है, और ये बात कही जा रही है कि इमरान खान के लिए अडयाला जेल से मुंतकली अब सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव के अंदर ज़रूरी हो चुकी है। रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट्स इस हवाले से सामने आई हैं। मिलिट्री कोर्ट से कुछ लोगों को सज़ाएं मिली हैं, और मिलिट्री कोर्ट से मिलने वाली सज़ाओं के बाद ये राय सामने आई है मुख्तलिफ हुकूमती हलकों के ज़रिए कि इन लोगों को आम जेलों की बजाय किसी स्पेशल फैसिलिटी के अंदर मुंतकिल किया जाए, और वहाँ पर इन लोगों को अपनी कैद की मुद्दत पूरी करने का मौका दिया जाए। और रिसेंटली चूँकि जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ केस का फ़ैसला मुतवक्के है, और जनरल फैज़ हमीद के बारे में भी यही राय सामने आ रही है कि उनको अडयाला मुंतकिल करने की बजाय इसी स्पेशल फैसिलिटी के अंदर मुंतकिल किया जाए, जहां पर वो अपने कैद के दिन या जो भी सज़ा उनको दी जाएगी वो अपनी सज़ा वहां पर ही पूरी करें। इस स्पेशल फैसिलिटी के बारे में ये बात कही गई है कि 2 फैसिलिटीज़ इस वक्त मौजूद हैं मुल्क के अंदर। एक फैसिलिटी ताज़ा तरीन जो है वो रावलपिंडी के अंदर तैयार की गई है, और इसके साथ साथ एक खुसूसी
फैसिलिटी साहिवाल के अंदर भी तैयार की गई है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इमरान खान को मच्छ जेल मुंतकिल किया जाए, लेकिन चूंकि इमरान खान साहब को पंजाब की अदालत ने ही सज़ा सुनाई हुई है, लिहाजा उनको सज़ा की मुद्दत पंजाब के अंदर ही पूरी करनी है। वो पंजाब के बाहर बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल के अंदर उनको मुंतकिल नहीं किया जा सकता, और उस वक्त तक नहीं किया जा सकता जब तक वो सूबा जहाँ पर उनको मुंतकिल किया जाना है वो उसकी इजाज़त ना दे, और यहाँ पर जो है वो रावलपिंडी बेंच इमरान खान की मुंतकिली को मंजूर ना करे। लिहाजा इस बात के इम्कानात पाए जा रहे हैं कि इमरान खान साहब को मुमकिना तौर पर साहिवाल जेल मुंतकिल किया जाएगा, और साहिवाल के अंदर मेरी इतलात के मुताबिक एक खुसूसी सेल जो है वो उसको तैयार भी कर लिया गया है, और वो अपने वीवीआईपी मेहमान का इस्तकबाल करने के लिए मुकम्मल तौर पर रेडी है। लिहाजा जैसे ही इस बात का फ़ैसला किया जाएगा, और बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स और हुकूमती ज़ोमा इस बात का इशारा दे रहे हैं कि इमरान खान को अडयाला जेल में रखना ये अब एक सिक्योरिटी रिस्क बनता जा रहा है, लिहाजा इमरान खान को किसी दूसरी जेल में मुंतकिल किया जाएगा। इसके साथ साथ एक और अहम इशारा सामने आया है, और वो वज़ीर आज़म साहब के पॉलिटिकल अफेयर्स के एडवाइज़र जनाब राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से सामने आया है। राना सनाउल्लाह साहब ने हालिया एक इंटरव्यू में इस बात का इशारा दिया है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ संगीन गद्दारी के इल्ज़ाम के तहत कार्रवाई का जो इम्कान है वो पाया जाता है, और मुमकिना तौर पर इमरान खान के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत यानी संगीन गद्दारी के इल्ज़ाम के तहत जिसकी सिर्फ एक ही सज़ा है, और वो सज़ा है सज़ाए मौत। उनका ये मानना है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ संगीन गद्दारी का जो मुकदमा है वो चलाया जाएगा, और मुझे ऐसे लगता है कि अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ संगीन गद्दारी का मुकदमा चलाया जाएगा तो फिर उसके लिए जो बुनियाद है वो पंजाब असम्बली की मंजूर करदा ये करारदाद ही बन सकती है, क्योंकि इस करारदाद में दुश्मन मुल्क का आला कार करार दिया गया है। मैंने उस करारदाद की वर्डिंग अभी आपके साथ शेयर की है। तो इसका मतलब ये है कि जो दुश्मन मुल्क का आला कार है वो आपके मुल्क में बैठकर जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहा है, और ये संगीन गद्दारी के ज़िम्रे में आता है। और शायद यही वजह है कि राना सनाउल्लाह साहब ने संगीन गद्दारी के इल्ज़ाम के तहत कार्रवाई करने का इशारा दिया है। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में इमरान खान के लिए जो मुश्किलात हैं उसमें ना सिर्फ इजाफ़ा होने जा रहा है, बल्कि इमरान खान को अब जेल से मुंतकली के साथ साथ संगीन गद्दारी के मुकदमे का भी सामना करना पड़ेगा, और मुमकिना तौर पर उनकी जमात को एक दहशतगर्द तंजीम करार देते हुए उस पर पाबंदी भी आयद की जाएगी। लिहाजा जो सिचुएशन है इमरान खान से मुलाकातों से, तो बात मुझे ऐसे लगता है जैसे अब आगे बढ़ चुकी है, और ये जो प्रोजेक्ट था जिसको माजी में बड़े चाव के साथ, बड़े नाज के साथ, बड़े अरमान के साथ शुरू किया गया था, इस प्रोजेक्ट को अब मुकम्मल तौर पर बंद करके इसकी फ़ाइल को मुझे ऐसे लगता है जैसे जलाकर डस्टबिन में फेंकने का फ़ैसला कर लिया गया है। और देखना यह है कि इन फ़ैसलों पर ऐलान अगली मंगल से कबल किस वक्त हमारे सामने आएगा। अपनी आगे ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।